Hello everyone. So today here is next topic, that is oral drug administration. So oral drug administration is a route of administration where a substance is taken through the mouth and sometimes used as a direction for medication to be taken orally, and many medications are taken orally because they are intended to have a systemic effects reaching different part of the body via the blood stream. So, oral administration is a process by which drugs are delivered by mouth through the alimentary tract, and they can be either liquid or solid form, and it is done sublingual and buccal routes. Okay, so the definition is oral medication. The oral medication administers is the process by which drugs are delivered by the mouth through the alimentary tract. There are different methods of drug administration like IV methods, IM methods, but today we are discussing about the oral medication. तो oral medications एडमिनिस्ट्रेशंस क्या होता है, जो हम मेडिसिन कहाँ से थ्रू द माउथ लेते हैं. ओके, then before administering the drugs we have to do the primary assessment. Primary assessment is what? First of all, we have to do oral medication should be palatable as possible, and for liquid medications measure the dose exactly using the proper measuring device. Example, oral liquid dispenser medicines dropper or gratitude medicines cup. And we do not put the medication back in the container after they have been poured. Okay, so oral medications are given according to each unit's posted medications time unless a physician's order states differently. ओके हमें ओरल मेडिकेशंस अकॉर्डिंग टू जो आप हमारा डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, जितनी डोज हमें डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब करी है अकॉर्डिंग टू दैट हमें क्या करना है, पेशेंट को एडमिनिस्टर्ड करना है. एंड the person administering medication shall have knowledge of the medication including drug and food interaction, the usual dose, route of administration and the expected side effects, and any special precautions or contraindication. Clear? जो भी मेडिसिन क्या कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है, उसको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि किसी मेडिसिन की, इस मेडिसिन के कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, इंडिकेशंस क्या है. बिकॉज अगर पेशेंट्स में कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं तो हम पेशेंट्स को क्या कर सकें, उसको हम एजुकेट कर सकें. मीन अगर नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट है दैट्स ओके, लेकिन अगर सीवियर और टॉक्सिक साइड इफ़ेक्ट्स है देन वी हैव टू इन्फॉर्म टू द डॉक्टर एंड वी हैव टू स्टॉप दैट medications. Okay, so oral medications are contraindicated for individual who experience nausea and vomiting, are unable to take medications by mouth because of a disease condition or unconsciousness. Okay, if patient is unconscious then we do not give the oral medication to the patient. Why? Because the unconscious patient can't take orally medicines. Okay, and if patient is having nausea and vomiting, that time we don't give the oral medication to the patient. So always check the expiration date on the label or container of the medication to be administered. Okay, आप सबको ही पता है, हमें कोई भी चीज़ हो, हमें खाने की चीज़ हो या पीने की चीज़ हो या मेडिसिन हो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी एक्सपायरी और मैग्निफिक डेट क्या करते हैं, चेक करते हैं. तो सेम हमें यहाँ पे भी क्या करना है, बिफोर गिविंग द मेडिकेशन वी हैव टू चेक द एक्सपायरी डेट ऑफ ड्रग. ओके, so check the storage requirement as some medications need to be refrigerated.
and perform hand hygiene. Whenever you are doing any procedure, first of all you have to perform hand hygiene or hand washing before and after doing any procedure, and check room for additional precautions and introduce yourself to patient. Okay, whenever you are giving the medications to the patient or whenever you are doing any procedure, first of all you have to introduce yourself, and after that what procedure you are doing you have to explain to the patient also. So confirm the patient id using, okay, to patient identify, एग्जाम्पल नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। जैसे कि क्यों चेक करना है हमें, क्यों पेशेंट की आईडी, क्योंकि आईडी क्या होता है, एक यूनिक नंबर रहता है पेशेंट का, क्योंकि एक नाम के क्या हो सकते हैं, आपके दो दो पेशेंट हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंफर्म द आईडी, after that we have to provide the medication to the patient. Clear? And plain medication administered to avoid disruption, and dispense medication in a quiet area, and avoid conversation with others. Why avoid conversation with others? इससे क्या हो सकता है, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, आप पेशेंट को रॉन्ग डोज दे सकते हो, रॉन्ग मेडिकेशंस प्रोवाइड कर सकते हो. सो फॉलो द एजेंसीज नंबर इंटरप्शन जोन पॉलिसी एंड प्रिपेयर द मेडिकेशन फॉर वन पेशेंट एट अ टाइम. ओके, ये नहीं है कि आपने 10 पेशेंट्स का मेडिकेशन एक ही साथ में प्रिपेयर कर लिया. नो, जब आप एक पेशेंट को मेडिसिन दे रहे हो तो उसका पहले आप कंप्लीटली मेडिकेशंस करें, देन आप नेक्स्ट पेशेंट को मेडिसिन प्रिपेयर करें. ओके, सो फॉलो द राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन. राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेड वी हैड डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लास. So what are the purpose of oral administration, oral drug administration? The purpose are, the medications are administered orally to produce local effect on the alimentary canal or systemic effect after absorption into the blood stream. Then before doing the procedure, we have to prepare of medication trolley. सो प्रिपरेशन ऑफ मेडिकल ट्रॉली, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास कौन कौन से आर्टिकल्स होने चाहिए. अ ट्रॉली, अ क्लीन ट्रे कंटेनिंग, ट्रे में आपके क्या क्या होना चाहिए, आउंस ग्लास, मिनिम ग्लास, टी स्पून और ड्रॉपर, ड्रिंकिंग वाटर इन ग्लास और फीडिंग कप, मोटर एंड पेस्टल, टावल, किडनी ट्रे और पेपर बैग, प्लास्टिक मेडिकेशन कंटेनर एंड मेडिसिन्स कार्ड. ओके, तो आपकी ट्रे में ये सारे आर्टिकल्स होने चाहिए. जो दिस इज द मेडिसिन्स ट्रॉली, यू कैन सी इन द पिक्चर. ओके, एंड इट इज मेडिसिन्स ट्रे, आउंस ग्लास, ये क्या होता है, मेजरिंग ग्लास होता है. इससे हम क्या करते हैं, 1 ml देना है, 2 ml देना है, 0.5 ml देना है, 50 ml देना है, हम इससे क्या कर सकते हैं, मेजर्स कर सकते हैं. ड्रॉपर आपने देखा होगा कि मोस्टली चिल्ड्रंस में हम क्या करते हैं, ड्रॉपर का यूज़ करते हैं, बिकॉज दे कान टेक इन टैबलेट फॉर्म. सो हम क्या करते हैं, लिक्विड का यूज़ करते हैं मोस्टली चिल्ड्रंस के साथ. ये क्या आपका मॉर्टल एंड पेस्टल, जैसे आपको कोई मेडिसिन क्रश करनी है तो आप किस में क्रश करोगे, दिस मॉर्टर एंड पेस्टल. ओके, क्लियर. सो दीज ऑल आर द आर्टिकल्स. किडनी ट्रे, मेडिसिन्स. ओके, ये सारी चीज़ें आपकी किस में होनी चाहिए, ट्रे में होनी चाहिए. किडनी का क्या यूज़ है यहाँ पे, किडनी ट्रे का क्या यूज़ है. किडनी ट्रेज में आप जो भी डिस्कार्ड मटेरियल होते हैं वो हमें किस में करना है, किडनी ट्रे में रखना है, ताकि हमें इधर उधर स्प्रेड करना है. ओके, नाउ आफ्टर द प्रिपेयरिंग ट्रॉली और आर्टिकल्स, देन हमें किसको प्रिपेयर करना है, पेशेंट को. प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एक्सप्लेन प्रोसीजर टू द पेशेंट और पेशेंट
relatives और patient अटेंडेंस. ओके, जब भी हम कोई भी प्रोसीजर्स करते हैं सबसे पहले हमें पेशेंट को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है. सपोज हम ओरल केयर दे रहे हैं, हम आई केयर दे रहे हैं, कोई भी केयर दे रहे हैं, कोई भी प्रोसीजर्स कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें पेशेंट को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है. ओके, एंड डिस्कस नीड फॉर मेडिकेशंस. पेशेंट को मेडिकेशंस की क्या नीड है, हमें उसको क्योंकि समटाइम्स पेशेंट क्या करते हैं, डिनाई करते हैं मेडिसिन लेने से. तो वी कांट फोर्स देम, बट हम क्या कर सकते हैं, उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, उसकी मेडिसिन की नीड उन्हें बता सकते हैं ताकि वो ईजिली क्या कर सके, मेडिसिन ले सकें. एंड असिस्ट द क्लाइंट टू सिट इफ पॉसिबल, एंड अ लेटरल पोजिशन इज नेक्स्ट सेफेस्ट पोजिशन. ओके, इफ क्लाइंट इज टू सिट इफ पॉसिबल, अगर पेशेंट बैठ सकता है देन इट्स ओके, अगर नहीं बैठ सकता है तो दैट इज नॉट नेसेसरी. And give mouthwash if necessary, and protect bed clothes and garments with towel placed under the client's chin across the chest. Okay, ताकि क्या ना हो सके, जो उसके क्लोथ्स है वो क्या ना हो सके, डर्टी ना हो सके, इसलिए हमें क्या करना है, वहाँ पे एक टावल प्लेस करना है अंडर द क्लाइंट्स चिन अक्रॉस द चेस्ट. ओके, नाउ वी डू द प्रोसीजर. ओके, पहले हमने क्या किया, मेडिसिन ट्रॉली प्रिपेयर करी, देन हमने पेशेंट को प्रिपेयर किया. नाउ वी विल डू द प्रोसीजर. ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया, बिफोर डूइंग द प्रोसीजर एंड आफ्टर डूइंग द प्रोसीजर वी हैव टू डू हैंड वॉश एंड वी हैव टू परफॉर्म हैंड हाइजीन और हैंड वॉशिंग. ओके, वाई, टू प्रिवेंट द क्रॉस इन्फेक्शन. एंड the next step is check the label with medications administration record. Why? To assure the correct medications. And the solid preparation when the patient is present. For solid floors, stock pure. Do not handle pill or capsule by hand. Okay, so correct the amount of medication into the container lid, then into the medicine cup. And for unit dose, open unit dose medications packet and place in medicine cup. Why? To prevent the contamination of medicines, and medications packets are not opened until individual is present. Okay, then liquid preparation आप कैसे करोगे, आपने पढ़ा होगा, शेक बिफोर यूज. तो शेक द मिक्सचर और सस्पेंशंस बिफोर pouring. Okay, follow the instruction on bottle. And a medication with an unexpected precipitated or a change of color is not to be used. अगर उसमें कुछ चेंज है या प्रेसिपिटेशंस है तो आपको वो मेडिसिन क्या नहीं करनी है, यूज़ नहीं करनी है. बिकॉज द सम मिक्सचर्स रिक्वायर्स रोलिंग बिटवीन हैंड while the other should be shaken well. And a medication that does not appear normal is to be returned to the pharmacy. Okay, and do not mix liquid medication together. Why? Because they may cause an undesirable interaction such as a precipitate. Okay, हमें जैसे दो लिक्विड मेडिकेशन है तो हमें उनको क्या नहीं करना है, मिक्स नहीं करना है, क्योंकि वो क्या कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं. दोनों का इंटरेक्शन हो तो वो क्या प्रेसिपिटेट फॉर्म कर सकता है वहाँ पे. ओके, सो व्हेन द लिक्विड मेडिकेशन इज प्योर फ्रॉम द बॉटल, प्योर फ्रॉम द साइड ऑफ द बॉटल अपोजिट द लेबल. वाई? दिस प्रिवेंट द लेबल फ्रॉम बिकमिंग obscured. Okay, and set the medicines cup so that the mark of prescribed amount is at eye level. Why? To get the accurate measurement. Clear? Like this. And when the setting up medication that require the use of a dropper, and the bottom of the meniscus is the point to measure. Why? Because the meniscus is the bottom of curve created by drawing up or pouring liquid into the container. And wipe rim of bottle with a paper towel and replace the cap to prevent the medication build up on the rim and cap, and make certain towel is clean. Okay, so
medication. This was the procedure of medication. Next is the B is administration. तो administrations में आपका nursing action क्या होगा? Solid preparations provided the individual with water unless other fluids are ordered. इसका rationale क्या है? Because the fluid reduces the friction between the medication and mucous membrane, thus the allowing the medication to go down quickly, and fluids help to dissolve solid drugs. ओके तो सॉलिड प्रिपरेशंस में हमें क्या करना है, विद वाटर और फ्लूइड जो भी ऑर्डर है पेशेंट को प्रोवाइड करना है, बिकॉज ये डिजॉल्व होने में क्या करते हैं, हेल्पफुल होते हैं. एंड लिक्विड प्रिपरेशन may have additional fluid with medications unless contraindicated. Okay, because if a medication such as a cough syrup is given for its effect on the mucous membrane of the mouth or upper respiratory tract, so it is not to be diluted or followed by the water. Okay, and the sublingual medication is placed under the individual tongues to dissolve. Okay, हमने पहले भी प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था आपका सबलिंगुअल्स क्या होता है. बिकॉज द एडवाइज हिम अगेंस्ट द चूइंग और स्वेलोइंग द मेडिकेशन एंड अगेंस्ट ड्रिंकिंग अंटिल कम्प्लीटली डिजॉल्व. इसको हमने क्या नहीं करना है, ना तो चूइंग करना है ना स्वेलो करना है, जस्ट कहाँ प्लेस करना है, अंडर द इंडिविजुअल्स टंग टू डिजॉल्व. And if the individual vomit soon after administration of medication, attempt to identify the medication and notify the physician. So do not re-administer medication unless ordered to do so by the physician. Suppose कोई भी पेशेंट मेडिसिन लेता है, उसने वॉमिटिंग कर दी, तो हमें उसको क्या नहीं करना है, दोबारा वो मेडिसिन नहीं देनी है जब तक कि हमें डॉक्टर्स ने क्या नहीं दिया, ऑर्डर नहीं दिया है. सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मेडिकेशन एब्जॉर्ब, क्योंकि हमें नहीं पता उसने कितनी मेडिसिन एब्जॉर्ब करी है और कितनी मेडिसिन वॉमिट आउट करी है. ओके, सो द सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन. तो सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है आपका, आप पिक्चर्स में देख रहे हो, ठीक है. तो पेशेंट शुड बी प्लेस्ड इन सुपाइन पोजिशन and the patient places medication under the tongue for at least 10 minutes and avoid the opening mouth. हमें सब चीज़ अवॉइड करनी है, eating, drinking, chewing during the time. Okay, so shift the tap to a different position under the tongue if necessary. and आपको क्या करना है, वेट करना है several minutes after dissolving the sublingual medication before drinking or rinsing the mouth. Okay, there are some advantage of sublingual and buccal administrations of drug. like drug absorption क्या होता है आपका, quickly होता है, quick terminations होता है आपका, first pass avoided and can be self administered हो सकता है आपको, और economical भी है. and डिसएडवांटेज क्या है आपका, अनप्लेटेबल एंड बिटर ड्रग्स. ओके, सो इरिटेशन ऑफ ओरल म्यूकोसा, आपको इरिटेशन हो सकती है ओरल म्यूकोसा में. एंड लार्ज क्वांटिटीज नॉट गिवन, ये नहीं कि हम 10 और 12 एक साथ में रख सकते, लार्ज क्वांटिटी में नहीं दे सकते, सिर्फ 1 टैबलेट तो 1 टैबलेट. सो फ्यू ड्रग्स आर एब्जॉर्ब्ड. ओके, सो दीज आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सबलिंगुअल एंड बक्कल एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ drug. And the buccal administration, the tablet should be placed between the gum and the wall of cheek with the mouth closed, and the tablet should be held in this position for 5 to 10 minutes same or until it has dissolved. Okay, हमें फ्लूइड्स एडमिनिस्टर नहीं करना है जब तक कि मेडिसिन क्या नहीं हो जाती, आपकी डिज़ोल्व नहीं हो जाती. जो आपकी पाउडर मेडिसिन है वो मिक्सड एट बेड साइड, एंड स्टे विद
patient until swallow and check the mouth for ensuring swallowing. जब तक पेशेंट की मेडिसिन डिजॉल्व नहीं हो जाती आपको तब तक क्या रहना है, पेशेंट के साथ रहना है. ओके. देन आफ्टर दैट वाइप द माउथ एंड रिमूव towel, and after giving the medicines wipe the mouth of पेशेंट का माउथ क्या करना है, हमें वाइप करना है. एंड रिटर्न विद इन 30 मिनट्स टू इवेलुएट द रिस्पॉन्स. देन आफ्टर डूइंग द प्रोसीजर, हमें जो भी आर्टिकल हमने प्रिपेयर किया था, प्रोसीजर्स के बाद हमें क्या करने हैं, सारे आर्टिकल्स क्या करने हैं, रिप्लेस करने हैं जहाँ से भी हमने आर्टिकल्स लिए हैं. बिफोर दैट वी हैव टू वॉश एंड ड्राई देन रिप्लेस. हमें जो भी आर्टिकल्स है उनको वॉश करना है, ड्राई करना है, देन रिप्लेस करना है, देन डू हैंड वॉशिंग. एंड एट लास्ट आपको पता है क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन शुड बी डन इन पेशेंट मेडिसिन चार्ट और रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग. इट इज़ वेरी important. So every time or after doing any procedure we have to record and report. Okay, so this was all about the oral drug administration. Thank you class. So next day we will discuss about the next topic.